بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، یہ ہمارا TGSG یعنی دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ کے پلیٹ فارم سے ایپیسوڈ نمبر 29 ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 28 میں ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں موجودہ مادی کائنات، موجودہ زمین و آسمان، موجودہ عارضی عالم کی تخلیق کے مقصد، اصل عالم یا اصل زمین و آسمان کی نوعیت اور اصل عالم میں اعلیٰ مقام اور حتمی کامیابی پر تفصیلی گفتگو کی۔ آج ہم تصور شفاعت اور یوم القیامہ کے پورے دور میں اس کا کون سا موقع یا مرحلہ ہے اس پر گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی گرینڈ سکیم میں آپس میں انٹرلنکڈ ہے۔ میں محمد اسحاق ہوں اور اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے پرویز ہاشمی صاحب، خرم خان صاحب اور ڈاکٹر اسد امتیاز صاحب۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ آگاہ ہیں کہ ہم اپنے تمام تر پروگرامز خالصتاً قرآن مجید کی روشنی ہی میں کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک قرآن مجید ہر چیز سے اوپر ہے، چاہے وہ پرانے صحیفے ہوں یا روایات، یعنی قرآن مجید ہر چیز پر مہیمن ہے۔ مہیمن کا مطلب ہوتا ہے جی جو کوالٹی کنٹرول کرتا ہے، یعنی ٹچ سٹون ہے۔ جی ٹچ سٹون کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ جی قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو ہم روایات کی روشنی میں سمجھیں، نہیں، ہم کہیں گے روایات کو سمجھنا ہے تو ہم قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیں۔ ادر وے راؤنڈ ہے، ادر وے راؤنڈ، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہم نے پرانے اسکرپچر کو سمجھنا ہے تو ہم قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیں گے، کیونکہ مہیمن، کوالٹی کنٹرول کرنے والا، ٹچ سٹون، کسوٹی کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ قرآن مجید۔ مجید، بالکل، الفرقان۔ قرآن مجید ہمیشہ دیکھیں وہ اوپر رہے گا ہمیشہ، باقی سب اس کے نیچے ہیں، اس کی روشنی میں۔ تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ہمارے جو سارے پروگرام ہیں، ہمارے ویورز ہیں وہ غور کر رہے ہوں گے کہ خالصتاً قرآن مجید کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ہم روایات کا ذکر کرتے ہیں یا پرانے اسکرپچر کا ذکر کرتے ہیں تو جو اس کے ساتھ جا رہا ہے، جو پیرالل ہے، تب ذکر کرتے ہیں اس کو۔ جی جی اب ہم اپنے ناظرین کے سامنے ایک سلائیڈ پیش کر رہے ہیں، وہ ہے ٹیکسچوئل ریڈنگ کے حوالے سے بنیادی اصول۔ ایک تحریر میں مصنف دو طریقوں سے انفارمیشن دیتا ہے، ان میں سے کچھ ایکسپلیسٹ ہوتی ہیں یعنی واضح بیانات ہوتے ہیں، اور بہت سی انفارمیشنز امپلیسٹ طریقے پر دی گئی ہوتی ہیں جنہیں ریڈر انفر کر کے اخذ کرتا ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ امپلیسٹ طریقے سے اخذ کی گئی انفارمیشن سے ایکسپلیسٹ انفارمیشن یا واضح بیانات کی نفی نہیں کی جا سکتی، یعنی بنیاد ہمیشہ مصنف کے واضح بیانات پر رکھنی چاہیے، اور مصنف کی دی گئی مزید امپلیسٹ انفارمیشنز کو ایکسپلیسٹ یعنی واضح بیانات کی روشنی ہی میں سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بنیاد ہی امپلیسٹ انفارمیشن پر رکھ دی جائے، جس سے مصنف کے ایکسپلیسٹ یعنی واضح بیانات ہی کی نفی ہو جائے۔ جی، اب ایک ایک اپنا امپریشن بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں مجھے کہ یہ جو چیز سامنے ہے، اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا، تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل، مجھے اس سے بہت ہی کانسیپٹ میرا کلیئر ہوا ہے، اور ایکسپلیسٹ میں بتاتا چلوں کہ جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ وہ انفارمیشن ہوتی ہے جس کا مفہوم اخذ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ایسا لکھا ہوا دکھائیں۔ کیا ایسا لکھا ہوا دیکھا ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں؟ الفاظ دکھائیں، جی، الفاظ الفاظ دکھائیں۔ دکھائیں۔ اس جی میں یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹ، مطلب بتائیں، انہوں نے کہا جی الفاظ دکھائیں۔ جی الفاظ میں تو لکھا ہوا ہے تو وہ ایکسپلیسٹ ہے، اگر الفاظ ایگزیکٹ، میں نہیں لکھا ہوا تو وہ جی ایکسپلیسٹ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، تحریر کی بات ہم نے کی تو ہم اگلے دن بھی بات کر رہے تھے کہ ایک اچھا آدمی اگر ہونا اور وہ اپنی بات کرتا ہے، اور بات میں اگر کوئی الفاظ استعمال کرتا ہے بالکل واضح طریقے کے اوپر، تو پھر وہ بغیر الفاظ وہ استعمال کیے امپلیسٹلی کہ اس سے اپوزٹ انفارمیشن نہیں دے سکتا، اس آدمی کو ہم اچھا آدمی نہیں سمجھتے۔ کیوں جی خرم خان صاحب، سمجھیں گے اچھا آدمی؟ آف کورس، مطلب وہ ایک آ جائے گی تو ڈبل مطلب باتیں کر رہا ہے یا ٹو فیس باتیں۔ بٹ ایک بات بتائیں، ایک سوال یہ ہے کہ اگر ایکسپلیسٹ تو ہے، بالکل کلیئر ہے کہ ایکسپلیسٹ یہ ہے کہ وہ لکھا ہوا ہے ورڈز میں، کیا دو یا دو سے زیادہ لوگ
اس ایکسپلیسٹ کی اپنی کوئی انٹرپریٹیشن بنا سکتے ہیں. مطلب نہیں وہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ الفاظ میں لکھی ہوئی چیز لفظ ہو بس موجود. اب جب لفظ میں موجود ہے تو اس کا اگر وہ سیم یعنی لینگویج بولنے والے ہیں, ایک ہی زبان بولنے والے ہیں, تو وہ کیا لفظ کو کیا نہیں سمجھیں گے کہ یہ لفظ کیا لکھا ہوا. اگر ایک کو کہا جائے گا آپ لفظ دکھائیں تو وہ دکھا دے گا کہ یہ دیکھیں. دوسرے کو کہا جائے لفظ دکھائیں وہ لفظ دکھا دے گا. اگر لفظ نہیں ہے وہاں پھر انٹرپریٹیشن ہے. ایکسپلیسٹ میں الفاظ دکھانے پڑیں گے. اس میں اصول ہی یہ ہے کہ شو ڈونٹ ٹیل. صحیح, بالکل کلیئر. تو یہ اس کو ایبسلوٹلی کلیئر اس لیے ہونا چاہیے کہ ادروائز جو میں سمجھتا ہوں, خیر یہ مذہبی خالی تحریر کی بات نہیں کر رہا میں, قرآن مجید کی بات نہیں کر رہا, تو دنیا کی ہر تحریر, دنیا کا ہر کلام جو ہے وہ ایسے ہی ہونا چاہیے. کیوں جی ڈاکٹر صاحب, جی اسحاق صاحب, بالکل سر, ایسے ہی ہے. جی بالکل اسی طرح سے یہ جی. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جی جی آپ الفاظ میں مجھے اگر لیٹ سے کوئی چیز کہیں, آپ کوئی بھی چیز کہیں, ٹاک اینی تھنگ ناؤ, بولیں آپ اسحاق صاحب. جی, یعنی ہم کل مری جا رہے ہیں. تو آپ نے جب کہا, اب مجھ سے پوچھے گا کوئی کہ اچھا جی اسحاق صاحب کہاں جا رہے ہیں, میں کہوں گا مری. وہ کہے گا کیسے پتا چلا آپ کو, میں کہوں گا یہ دیکھیں, یہ جملہ دیکھیں, اس میں یہ مری کا لفظ. صحیح. کیونکہ اور اسحاق صاحب نے یہ خاص طور کہتے پہ ہیں کہ میں مینشن کر دیا کہیں جا رہا ہوں, ضروری مری نہیں. اور ہو ضروری سکتا نہیں ہے مری مری ہو, اپس کر لیتے ہیں ان کی دوسری باتوں سے کہ انہوں نے شاید ایک دن تذکرہ کیا تھا, ان کو جانا ہے, تو ہو سکتا وہ مری ہی سب جا کی رہا سب وہ امپلیسٹ ہوگی. ہے. جی دیکھیں وہ کہیں جا رہے ہیں کا مطلب کہیں ہے, کہیں میں مری بھی شامل ہے. مگر مری جا رہے ہیں, پھر آپ کو وہ بتانا پڑے گا کہ یہ اسحاق صاحب کے جملے میں یہ مری یہاں ہے, یہ ہے ایکسپلیسٹ. باقی آپ نے بڑا اچھا کہا کہ باقی امپلیسٹ ہے. کہیں جا رہے ہیں, پھر آپ کہیں کہ دیکھیں جی وہ بات کر رہے تھے, مری کا ذکر کر رہے تھے, وہ پروگرام بنا رہے تھے, فلانا کر رہے تھے, ہم کہیں گے ہاں بنا رہے تھے, مگر اس جملے میں کہاں ہے. ممکن ہے بعد میں انہوں نے پروگرام ہی چینج کر لیا ہو, مری کے بجائے کاغان چلے جاتے ہیں. بالکل آپ صحیح. اس کی نفی کیسے کر سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب تو زیادہ جانتے ہیں, کبھی یہ مری چلے جاتے ہیں, کبھی یہ نتھیا گلی چلے جاتے ہیں, کبھی یہ کاغان چلے جاتے ہیں, کبھی کہیں چلے میں جاتے اگلے یہ میں بدھ کو پھر جا رہا ہوں انشاءاللہ. کیا ہیں. کرنا وہ چاہیے میں اس وہی کہہ رہا ہوں نا کردو کہ بھائی آپ اگر ہاں کہاں کر دو. کردو. جی. اچھا اب آپ نے کہا میں کردو جا رہا ہوں, ہوں. تو کوئی پوچھے گا اگر, تو میں کہوں گا دیکھیں اگلی بدھ کو ڈاکٹر صاحب کردو جا رہے ہیں. وہ کہیں گے کیسے پتا چلا آپ کو. میں کہوں گا ان کے جملے میں دیکھیں اگلی بدھ بھی ہے اور کردو بھی ہے. بالکل. یہ ہے ایکسپلیسٹ. صحیح. کے علاوہ جو آپ دکھا نہیں سکتے, آپ کو انفر کر کے کچھ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈاکٹر صاحب ایسے بیان کر رہے تھے, فلانا یہ فلانا, واٹ ایور اٹ از امپلیسٹ. بالکل ٹھیک. امپلیسٹ میں وہ کردو بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. سر جب رائٹر جو ہے جو بھی وہ امپلیسٹ انفارمیشن خود سے انٹینڈ کر کے دینا چاہ رہا ہے, تو اس کے منظور نظر کیا چیز ہوتی ہے پھر امپلیسٹ میں, یعنی وہ کہ مزید آپ کو انفارمیشن نہیں دے گا. ہاں آپ کو ابھی آپ کہتے ہیں جی میں اگلی بدھ کو کردو جا رہا ہوں, آپ مزید اس میں انفارمیشن دینا چاہیں گے کچھ, میں کار میں سفر کو بس میں ہی جانا ٹھیک نہیں ہے, آج کل موسم یہ ہے, فلانا یہ ہے, یا حادثے ہو سکتے ہیں. واٹ ایور یو آر سیئنگ, آپ اس کو مزید بڑھا رہے ہیں آگے. اس سے کردو کی اور اگلے بدھ کی نفی نہیں ہو سکتی. صحیح 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 صحیح. نے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. ہی ہیں جو جس نے کہا ہے کہ میں اگلے بدھ کر دوں, اور آپ ہی باقی چیزیں بیان کر رہے ہیں, تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے میں کوئی چیز اخذ کر لوں اور آپ کے اس کردو کی بھی نفی کر دوں, اگلے بدھ کی بھی نفی کر دوں. بالکل ٹھیک. یہ نہیں ہو سکتا. آپ جب کسی کو کہیں گے نا, تو آپ کہیں گے سب سے پہلے آپ کہیں گے یار دیکھو وہ میں نے کردو اور اگلا بدھ کہا ہے, تم کیسے اس کی نفی کر سکتے ہو. آپ نے کہا جی وہ دیکھیں آپ نے یہ کہا تھا میں کار میں نہیں جا رہا, میں موسم یوں ہے, میں بس میں جا رہا ہوں, میں فلانا کر رہا ہوں, اس کو میں نے فلانے بندے کو کہا ہے, وہ آ کے مجھے لے واٹ ایور اٹ از کریکٹ, مگر اس کی نفی نہیں ہو سکتی انٹل انلیس کیا آپ نفی کر کے بتائیں کہ سوری یار میں نے وہ پہلے جو کہا تھا نا کر دوں,
اور اگلا بدھ نو آئی ہیو چینج مائی پروگرام، میں اگلے بدھ نہیں جا رہا، میں اسکرٹو نہیں جا رہا، پھر ہم کہیں گے کہ نہیں جا رہے۔ ٹھیک کسی سر، واضح دوسرے ہو کے گیا۔ کوئی نتیجہ اخذ کرنے سے ہم یہ نہیں سمجھ لیں گے کہ ڈاکٹر صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کر دو، ڈاکٹر صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں اگلا بدھ، اور ڈاکٹر صاحب نے 10 انفارمیشن اور دی ہیں امپلیسٹلی، اب اس کی نفی کر دیں، اب اس سے نہیں کر سکتے۔ یہ ہے مطلب اس کا۔ ہاں جی، اپنا خرم خان صاحب، آپ کو تو خیر پہلے ہی واضح ہو گیا، مزید کوئی؟ جی 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 جی، یہ مجھے واضح ہے۔ معزز ناظرین، ہماری ایکسپلیسٹ ورسز امپلیسٹ کی جو ڈسکشن ابھی ہوئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے جو شفاعت کے کانسیپٹ کے حوالے سے آیات لے کر آنی ہیں، ان میں اس کانسیپٹ کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ کی ایک ویڈیو کا لنک بھی دے دیں گے، کائنڈلی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، جس سے مزید آپ کو کلیئرٹی ہوگی کہ ایکسپلیسٹ اور امپلیسٹ انفارمیشن سے کیا مراد ہوتی ہے۔ ناظرین، اب ہم مثال کے طور پر قرآن مجید کی مختلف مقامات پر آئی ان 3 ایکسپلیسٹ آیات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ ہم ان آیات سے کیا مطلب اخذ کرتے ہیں۔ پہلی آیت جو آپ کے سامنے ہے، یہ سورۃ الاعراف آیات 24 تا 25 ہیں، یہ 2 آیتیں ہیں۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فرمائے یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ دوسری آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں بنایا اور اسی میں لوٹائیں گے اور دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم جاتے ہیں نا دفن کرنے کے لیے اپنے مردے کو قبرستان میں، اور اس کے بعد ہوتا ہے یہ ایک ریچول ہے کہ وہ مٹی تھوڑی سی یا ڈھیلا اٹھا کے ہم ڈالتے ہیں قبروں کے اوپر، تو یہ ہے دعا جو ہم پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو یہ دعا تو بھول گئی ہوئی ہے، صرف یہ یاد رہ گیا ہوا کہ قبر کے اوپر مٹی ڈالنی۔ جی ساتھ میں دعا یہ ہے جی کہ ہم نے دیکھیں، ہم نے تمہیں بنایا ہے، اسی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے، اسی میں لوٹائیں گے اور دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ یعنی اب دوبارہ کا لفظ یہاں استعمال ہو گیا، دوبارہ۔ جی۔ تیسری آیت ہے جی، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے خاص طور پر پیدا کیا، پھر وہ تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور اسی میں سے پھر باہر نکالے گا۔ سورہ نوح آیات 17 تا 18۔ ناظرین، اب یہ دیکھیں، یہ 3 آیات انہوں نے پڑھی ہیں اسحاق صاحب نے، اب نیچے ہم نے اس کا ایک نتیجہ نکالا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیں کہ کیا نتیجہ ہے؟ کیا ان آیات سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ جس زمین پر ہم قیامت میں نئے جسموں کے ساتھ اٹھیں گے وہ یہی زمین ہوگی جس پر اب ہم بس رہے ہیں؟ بالکل نکلتا ہے، ان تینوں کلیئر ہے، ایکسپلیسٹ آیات سے کیا یہ نتیجہ نہیں نکلتا؟ کیوں جی؟ نکلتا اب سب اپنی اپنی رائے دیں۔ جی بالکل۔ یہ تو بہت ہی واضح آیات ہیں، اس کو کون پتہ نہیں کیسے کچھ اہل علم نے نکال رہے ہیں، مگر یہ تو تینوں آیتیں بالکل ان تمام باتوں کی نفی کر رہی ہے۔ بالکل۔ اپنے اسحاق صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ واضح کر رہی ہیں، اور اس میں ایکسپلیسٹلی جیسے پہلی آیت میں ہے کہ تم اسی میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے، یعنی تینوں چیزیں جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ اور پھر دوسری آیت میں بھی کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں بنایا، یعنی اسی کا خمیر لے کر ہم بنتے ہیں، ہماری باڈی بنتی، اسی میں لوٹائے جائیں گے اور دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ یعنی اس تیسری کا آیت، مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جتنا مرضی وہ بڑا اہل علم ہو، آپ کے سامنے اگر ایکسپلیسٹ ورسز سمپلیسٹ کا اصول واضح ہے تو آپ ان کی نفی کر دیں گے کہ نہیں جناب، کسی اور زمین کے اوپر نہیں، ہم اسی زمین پہ اٹھیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی ایکسپلیسٹ آیات، قرآن مجید کا واضح بیان یہی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کہ نہیں ہے؟ بالکل متفق۔ صحیح ہے، یہ مثال پہلی تھی، اب دوسری مثال دیں گے اسحاق صاحب۔ جی۔ اور یہ آیتیں اس رول پہ بھی پوری اتر رہی ہیں کہ
डोंट टेल, शो वाला वर्ड बकायदा शो, लिख। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। शो, अभी कोई कहेगा शो, आप पीछे लाएं जरा साहब साहब, इन्होंने सही पॉइंट आउट किया। आप कोई कहेगा अगर कि ये शो करें तो हम क्या को शो करेंगे, हम हर आयत में कहेंगे कि ये देखें इसी जमीन का जिक्र है, दोबारा इसी से निकालेंगे, इसी में से फिर निकालेगा, इसी से निकाले जाओगे, हम दिखा देंगे कि देखें ये लिखा हुआ। बिल्कुल। वो कोई ये कहेगा मैं इंटरप्रिटेशन इसकी करता हूँ, हम कहेंगे यार ये लिखा हुआ सामने है, राइट इसमें राइट। यू डोंट हैव टू टेल, यू हैव टू शो। ठीक है जनाब, नेक्स्ट बिल्कुल। मिसाल। नाज़रीन, अब ये दूसरी मिसाल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की नफी के हवाले से है, जिसके लिए कुरान मजीद की एक और एक्सप्लिसिट आयत पर गौर करते हैं। मैं आपके सामने आयत का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 59 है, 59। ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की सी है। इसको मट्टी से तख्लीक किया और फिर कहा कि हो जा, तो वो हो गया। क्या अब ये इस तर्जमा पढ़ा है ना आपने आयत का, जी जी अब ये नतीजा जरा पढ़े जी अपने डॉक्टर साहब, नतीजा क्या है? क्या इस आयत से नतीजा नहीं निकलता कि जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनियावी वालिद नहीं थे, इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के भी दुनियावी वालिद नहीं होने चाहिए, यानी उनकी क्रिएशन बिला वास्ता बिला वास्ता मिट्टी से होनी चाहिए। क्यों ये नतीजा निकलता है कि नहीं इससे? एब्सोल्युटली। बिल्कुल और अल्लाह ताला ने इतनी दलील ही इस बात की दी थी कि ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद नहीं है, और वो हजरत आदम भी इसी तरह के उनके भी वालिद नहीं थे। तो मतलब इससे ज्यादा बात क्या होगी? और एक्सप्लिसिट है ना जी, ये सामने है, एक्सप्लिसिट है। तो अब कोई आदमी अगर आपकी कहेगा कि हजरत आदम के दुनियावी वालिद थे, तो हम नहीं मानेंगे, हम कहेंगे देखें अल्लाह ने मिसाल ये दी है। या अगर आप मान रहे हैं कि हजरत ईसा के वालिद नहीं थे दुनियावी, तो आदम के भी नहीं होने चाहिए, ये सामने क्योंकि लिखा हुआ है। कुछ अहले इल्म अब ये बात कर रहे हैं कि कुछ थे, बॉडीज थी, उनमें आदम इस्लाम और हव्वा इस्लाम की लाके डाल दी जी, वो ना। वो और मैं तो इसी की नफी कर रहा वो तो हूँ। उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हुए फिर तो ऑलरेडी, मगर यहाँ जी तो जी, साफ साफ मना कर दिया इस बात को। एब्सोल्युटली, वो हम नहीं मानेंगे, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा आलिम हो, हम की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरान मजीद का एक्सप्लिसिट बयान हमारे सामने है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। जी अब नेक्स्ट जी नाज़रीन, एक मिसाल। और मिसाल लीजिए। कुरान मजीद की सूरह अंबिया की आयत 101 से 103 में एक्सप्लिसिटली अब ये सॉरी मैं काट के बाद बयान कर रहा हूँ कि ये मिसालें इसलिए दे रहे हैं हम कि जो एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट का असूल है ना, वो मिसालों से भी वाजे हो जाए, बिल्कुल जी बिल्कुल वाजे हो जाए। उसकी वजह ये है, ये इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। हमारे बहुत बड़े बड़े अहले इल्म जो है ना, आपको इसकी नफी करते नजर आएंगे बाज मामला। और फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कुरान मजीद के हवाले से बिल्कुल, आप समझें कि जरा सा फर्क पैदा हो गया ना, थोड़ा सा आप देखें जो एंगल होते हैं ना, उसमें स्टार्ट में आप जरा सा कोई 0.5 डिग्री का अगर फर्क डाल लें, तो आगे जाते जाते पता नहीं कितना फर्क वाकई है। ऐसे ही है ना कुरान खान साहब? बिल्कुल ऐसे। जी। तो अब ये हम ये छोड़ेंगे नहीं, हम कहेंगे नहीं नहीं यार, ये कुरान मजीद की एक्सप्लिसिट इसमें जिक्र है, अल्फाज में जिक्र है, लिहाजा दूसरी चीज नहीं मानी जा सकती। बेशक अहले इल्म जितने भी बड़े बड़े कहें, वो हम कहेंगे सॉरी, वो हम आपकी बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुरान मजीद की एक्सप्लिसिट बयानात के अगेंस्ट है। जी, सूरह अंबिया आयत 101 से 103। बेशक जिनके लिए हमारा अच्छा वादा हो चुका है, वो उस जहन्नुम से दूर रखे जाएंगे, वो इसका खटका भी नहीं सुनेंगे, और वो अपनी चाहत की नेमतों में हमेशा रहेंगे। उनको सबसे बड़ी घबराहट की साथ गमगीन नहीं करेगी, और फरिश्ते उस बशारत के साथ उनका खैर मकदम करेंगे कि ये आप लोगों का वो दिन जिसका वादा किए जा रहे थे। मगर सूरह मरियम आयत 71 में दी गई इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन से बेशतर अहले इल्म ने इससे बरक्स नतीजा निकाला है। इसी चीज की निशानदही करते हुए मौलाना अमीन अहसन इस्लाही तदब्बर कुरान में सूरह मरियम आयत 71 के तहत लिखते हैं। पहले मैं उसका तर्जुमा आपके सामने पढ़ लेता हूँ। और इनको हुक्म देंगे कि तुम में से हर एक को बहरहाल इसमें दाखिल होना है, ये तेरे रब के ऊपर एक तयशुदा अमर वाजे है।
अब ये दूसरी आयत है, ये सूरह मरियम की है। वो पहले वाली जो थी सूरह अंबिया की थी, ठीक। जो एक्सप्लिसिट थी कि जो अहले ईमान है वो जहन्नम से दूर रखे जाएंगे, उसका खटका भी नहीं सुनेगा। जी वो अल्फाज में है। अब ये देखें जी मौलाना क्या फरमाते जी। मौलाना अमीन हसन इस्लाही तफसीर में लिखते हैं, हतम का मफहूम मुजरमीन से खिताब। हतम के मानी वाजिब और लाजिम के हैं, और ज़मीर खिताब के मुखातिब वही मुजरमीन हैं जिनका जिक्र ऊपर से चला आ रहा है। हैं। ये ऊपर की कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहे हैं। और ज़मीर खिताब के मुखातिब वही मुजरमीन हैं जिनका जिक्र ऊपर से चला आ रहा है, ऊपर से जिक्र ही उनका चला आ रहा जी, है। ऊपर की बात बसीगा गायब कही गई है, और ये बात उनको मुखातिब करके इरशाद हुई। इन दोनों उसलूबों के अलग अलग फ़ायदे हैं। जिस तरह गायब का उसलूब अदम इल्तिफात पर दलील होता है, इसी तरह खिताब का उसलूब शिद्दत इताब पर दलील होता है। कुरान मजीद और कलाम अरब में इसकी मिसालें बहुत हैं कि गायब का उसलूब कलाम दफतन खिताब के उसलूब में बदल गया है। यहाँ भी इसी नौ की तब्दीली हुई है। चूंकि मकसूद शिद्दत गज़ब का इजहार है, इस वजह से अल्लाह ताला उन मुजरिमों को खिताब करके फरमाएगा कि अब तुम्हारे लिए दादो फरियाद और उज़्र माजरत का वक्त गुजर गया है। अब तुम में से बिला इस्तिस्ना हर एक को इस जहन्नुम में उतरना है। साथ ही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिलाया कि यह अमर बिल्कुल कतई और फैसल शुदा है कि उसको तुम्हारे रब ने अपने ऊपर लाजिम ठहरा लिया है। एक दिन तुम दुश्मनों का। अपने दुश्मनों का ये अंजाम अपनी आंखों से देख लोगे। सिर्फ मुजरिम जहन्नुम पर वारिद होंगे। आयत की ये तावील बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन हमारे मुफस्सिरीन ने इसका मुखातब तमाम बनी नौ इंसान को मान लिया है। चुनाचे हर शख्स के लिए खा नेक हो या बद, जहन्नुम से गुजरना जरूरी करार ये देते वही कह रहे हैं, ये मौलाना इस्लाही की, ये हमने नतीजा नहीं निकाला, मौलाना इस्लाही ही कह रहे हैं। जी, हैं। हाँ जी। चुनाचे हर शख्स के लिए खा नेक हो या बद, जहन्नुम से गुजरना जरूरी करार देते हैं। बस इतनी खैरियत है कि वो कहते हैं कि जहन्नुम पर पुल सिरात के नाम से एक पुल होगा, जिस पर से नेक लोग तो गुजर जाएंगे, अलबत्ता वो लोग जहन्नुम में पड़े छोड़ दिए जाएंगे जो बुरे होंगे। ये अब करना देखें क्यों ये है? कहाँ, अब देखें पुलसरात भी उन्होंने बरामद कर लिया वहां। जी वही ना, ये करना क्यों है? ये तो लग रहा है कि अल्लाह ताला इज बेंट अपॉन पुटिंग यू इन द जहन्नुम के, मतलब किसी तरह भी ये चले आगे जाएंगे। मौलाना ने कहा है कि भाई जिनसे खिताब चला आ रहा है ऊपर से वो मुजरिमीन है, बिल्कुल। वो और मुजरिमीन से बुरा कहा अंजाम। जा रहा है, ना कि दुनिया के सारे आदमी से कहा जा रहा है। जी आगे। तो जी प्लीज। जी, ये गलत फहमी मुफस्सिरीन को सिर्फ उसलूब कलाम के ना समझने के सबब से हुई है, और हमने देखा है कि उनकी अक्सर लग़ज़शें इसी चीज़ का नतीजा हैं। ताज्जुब है हाँ कि इतनी सख्त बात कहते हुए इन हजरात को कुरान की वो आयत याद नहीं आई जो सूरह अंबिया में नेककारों से मुताल्लिक वारिद हुई है। फरमाया, बेशक जिनके लिए हमारा अच्छा वादा हो चुका वो इस जहन्नुम से दूर रखे जाएंगे, वो इसका खटका भी नहीं सुनेंगे, और वो अपनी चाहत की नेमतों में हमेशा रहेंगे। उनको सबसे बड़ी घबराहट के साथ गमगीन नहीं करेगी, और फरिश्ते उस बशारत के साथ उनका खैर मकदम करेंगे कि ये आप लोगों का वो दिन जिसका वादा किए जा रहे थे। नाजरीन, इस मिसाल में भी गौर कर लें कि सूरह अंबिया आयात 101 ता 103 एक्सप्लिसिटली बयान कर रही हैं कि अहले ईमान जहन्नुम से दूर रखे जाएंगे, वो इसका खटका भी नहीं सुनेंगे, मगर बेशतर अहले इल्म सूरह मरियम आयत 71 में दी गई इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन से कुरान मजीद की एक्सप्लिसिट बयानात की नफी कर रहे हैं। इस तरह की कई मिसालें और भी आपको उलमा के यहाँ मिलेंगी, क्योंकि वो टेक्सचुअल रीडिंग के हवाले से बुनियादी उसूल यानी एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट से आगाह नहीं है। ये हमने नतीजा निकाला जो बयान किया हमने, और हम ये कह रहे हैं कि इस तरह की कई मिसालें और भी आप गौर करते जाएं, और उलमा की जो तफसीरें वार उन पर भी गौर करें तो आपको मिलेंगी इस तरह की मिसालें। क्यों मिलेंगी? इसलिए कि वो टेक्सचुअल रीडिंग के हवाले से बुनियादी असूल यानी एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट से आगाह नहीं है। सही। अब देखें मौलाना ने भी जो नफी की है उसकी, वो सामने जो चीज आई है उससे नफी की है। दो कि मुमकिन है मौलाना इस्लाही को आप पूछते तो वो आपको ये ना बता सकते कि एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का कोई असूल होता है।
मगर उनके ज़हन में है कि यार सामने लिखा हुआ है, कैसे नफी हो गई। हाँ, क्योंकि उसमें इंटरप्रिटेशन नहीं है और करने की गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर है तो कोई उसको उसको गुंजाइश नहीं है। वो कहते हैं, देखे लिखा हुआ है सामने, जी अल्फाज में लिखा हुआ है। अब अल्फाज में जब चीज आ गई है तो वो एक्सप्लिसिट है, उसमें लिखा आ गया सामने कि भी वो जहन्नम से दूर रखे जाएंगे, लिखा आ गया सामने, उसका खटका भी नहीं सुनेंगे। अब इसकी नफी कैसे होगी? बिल्कुल। पुलिस रात बरामद कर लिया उसमें से इतना बड़ा। और देखें वो फिर पुलसरात उधर, हालांकि पुलसरात तो एक्चुअली ये दुनिया है, ये दुनिया की जिंदगी जो है ये पुलसरात है। ये वाकईतन तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक। जरा सा आदमी इधर उधर करेगा तो जहन्नम के रास्ते पे चल पड़ेगा। मतलब जो ठीक है? यहाँ पे इस पुल सराह से गिरा वो फिर 4-5 साल के लिए नहीं गिरा, वो हमेशा के लिए गिरा। ये तमसील वो बयान देखे हुई ना, थी। अगर वो वाकईतन इस जिंदगी को समझता कि ये आजमाइश है, तो हर वक्त उसको यही होता है कि मैंने कामयाब होना है, मैंने कामयाब होना है, मैंने कामयाब होना है। मेरी असल जिंदगी मरने के बाद आने वाली है, मेरी असल जिंदगी मरने के बाद आने वाली है। वो कैसे रिस्क करेगा इसको? उसको हर वक्त खटका ही रहेगा ये। और अगर बिल्कुल। खुदा ना खास्ता उससे कोई गलती होती है, कोताही होती है, तो फौरन क्या करेगा? माफी मांगेगा। माफी मांगेगा और इसको इत्मीनान होगा कि मैंने सही दिल से माफी मांग ली है, और वो रब करीम, वो इतना गफूर रहीम है, उसने मुझे माफ कर दिया, और आइंदा एहतियात करेगा। सी दिस इज हाउ दिस लाइफ इज। जरा सा आदमी अगर अपने ऊपर इसका इम्पेक्ट ना रखे तो बहुत सारी गुनाहियां जिसमें मुब्तला हो सकता है। तो ये है पुलसरात। मगर उसको छोड़ दिया और वहीं एक पुलसरात बना दिया, और उधर एक्सप्लिसिट आयत की भी नफी कर। और ये दूसरी हम बात कह रहे ये है कि जो मैंने अक्सर मैंने एक दो बड़े मुस्तनद स्कॉलर्स को सुना इस वक्त ज़मन में, तो वो बताया जा रहा था कि पुलिस रात पे बकायदा लोग घिसट घिसट के और पता नहीं कैसे कैसे जा रहे हैं। तो इट अपीयर्स कि जैसे वो भी कोई इम्तिहान की जगह है या कोई ऐसी है जिन्हीं जिस पे ट्रायल है। भैया अब ज़ाहिर है हमने तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा कि ये हमारी आजमाइश तो का ये टेस्ट का सिलसिला तो मौत के वक्त खत्म हो जाना है। तो आगे ऐसे ही जाके है। भी फिर आपने अगर पुलिस रात से गुजरते हुए कोई टेस्ट देना है कि आप उससे हाँ, गुजरते हैं कि नहीं और गुजरते। उससे यही बात का वो आता है कि यार अल्लाह ताला चाह रहा है कि भाई लोग दोजख हाँ जन्नत ना जा पाए, किसी तरह भी बिल्कुल। जहन्नम मेरे में चले जाएं, गिर वाले जाएं, साहब ने वहां ना जाएं। ये कहा भी था एक दफा उन्होंने कि यार ये तो फिर यानी कि गुजर बड़ा हाँ भेजड़ा ना भी लंघन वाली गल हुई। वाले साहब ने कहा कि फिर ऐसी ना ही समझिए। हाँ हाँ बिल्कुल उन्होंने यही कहा। अब देखें ना, कुछ लोगों ने फिर कुर्बानी के बकरों को लिए हैं बीच में कि कुर्बानी के बकरे आपको उस पे लेके गुजरेंगे। ओ माय गॉड। फिर बहुत सारे ये लोगों वो ने क्या ये कोई भी कहा। सर्कस जमाई हुई है वहां? हाँ कि हाँ जनाब जो वही ना। सर्कस है ना, ये तो फिर जो अच्छा जिम्नास्ट है वो तो गुजरता है उसको। हाँ एक तार पे चलने की आजमा बोलो प्रैक्टिस हमें तो हाँ नहीं है। हाँ जी। हो सकता है तो कुर्बानी ये के बकरे जब बेचारा जिबा हो रहा तो वो ये सोच रहा हो कि मैं अल्लाह के सामने से वो करूंगा कि मुझे जिबा किया है। हाँ चलें आगे चलते आगे हैं। बढ़े जी। जी हाँ जी। अब आते हैं हम आज के मौजू यानी तसव्वुर शिफात पर। हमारे ख्याल के मुताबिक शिफात के हवाले से कंफ्यूजन इसी यूनिवर्सल उसूल एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट की क्लैरिटी ना होने की वजह से पैदा हुआ है। कुरान मजीद का इस हवाले से 3 मकामात पर एक्सप्लिसिट यानी वाज़े बयान है कि अदालत के मौके यानी मरहले पर किसी किस्म की शिफात मुमकिन नहीं। आपके सामने अब वो आयात हैं जो कि उस अदालत के मरहले की हैं। मैं उनका तर्जुमा पढ़ रहा देखिए, हूँ। आप उसका तर्जुमा पढ़ेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगी कि अदालत के वक्त की बात हो रही है। हम्म। अदालत एहतिसाब के मौके पर शिफात की नफी के हवाले से एक्सप्लिसिट आयात। पहली आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 48 है। और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम ना आएगा, और ना उससे कोई शिफात कबूल की जाएगी, और ना उससे कोई मुआवजा लिया जाएगा, और ना लोगों को कोई मदद ही मिलेगी। ये देखें, जितनी भी हेल्प की सूरतें हो सकती हैं ना, मदद की सूरतें हो सकती हैं, सबकी नफी की है, जी सिर्फ शफात की नहीं की। जी जी। यानी हम आप इमेजिन करें कि इससे ये 4 ही सूरतें हो सकती हैं, और कोई नहीं है। कि ना कोई किसी के काम आएगा, नंबर 1।
ना उससे कोई शफात कबूल की जाएगी उसके लिए, ये नंबर, ना उससे कोई मुआवजा लिया जाएगा। अभी दुनिया के हवाले से देखें ना, ऐसे ही होता है ना ये। और ना लोगों को बाहर से कोई मदद मिलेगी। ये अंदर वाली तो नहीं खत्म हो गई, बाहर से भी कोई आके कोई जबरदस्त किस्म का ग्रो आके छुड़ा के नहीं ले जा सकता। हम आगे अभी आयतें पढ़ने से पहले एक छोटा सा शिफात को डिफाइन कर दें कि एग्जैक्टली शिफात का मतलब क्या है, और फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं जो भी आयतें हैं बारिश, उससे। शिफात मीन्स बारिश। एक तो वो भी है ना कि कठहरे में खड़े होने वाली की बात नहीं, जब वो शिफात तब होनी है जब क्या कहते हैं वो आगे आप बताएंगे ना कि उसका मरहला कौन सा है, वो तो बताएंगे हम। मगर आगे आपने कहा हम लफ्ज का क्या मतलब है, लफ्ज का मतलब है सिफारिश। जी ठीक है, तो उसमें हम क्या कहते हैं वो किस मरहले में होनी है वो फिर हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक यही बताएंगे ना, हम ये बता रहे हैं कि आपको ये जो तीनों आयात अपना पढ़ रहे हैं साथ साथ, उसमें आपको नजर आएगा कि ये अदालत का मरहला है। है। और उसमें लिखा गया ये। नंबर 2 पढ़े जनाब, आपने जी 48 पढ़ी थी। जी दूसरी भी आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 121 है। और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ भी काम ना आएगा और ना उससे कोई बदला कबूल किया जाएगा, ना उसे कोई शिफात नफा देगी और ना लोगों को कोई मदद ही मिलेगी। इस आयत में और वही पहली है, आयत सिर्फ में और सिर्फ इस आयत में सिर्फ एक चीज आगे पीछे की है। जी अदल को पहले ले आए, शुबात को बाद में ले आए, जी एग्जैक्टली वही चीज। बिल्कुल आपको नजर आ रहा है कि ये जो मरहला है ये अदालत का मरहला, जी एब्सोल्युटली जस्टिस, जी एब्सोल्यूट जस्टिस है। जी कोई किसी किस्म की कोई बंदा काम नहीं आ सकता, कोई शफात जो कबूल नहीं की जा सकती, कोई ले दे के छुटकारा नहीं हो सकता, बाढ़ से भी कोई हेल्प नहीं हो सकती। कोई शिफात यानी यानी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी नहीं, किसी की शिफात नहीं, कोई लिखा पॉसिबिलिटी है नहीं। शफात नफा नहीं देगी उसको। जी। जी सूरह बकरा की आयत अब 254 का मैं तर्जुमा आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तीसरी ये आयत है आपके सामने। ईमान वालो, तुम इन्हें इनके हाल पर छोड़ो और जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसमें से अल्लाह की राह में उस दिन के आने से पहले खर्च कर लो, जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी, ना किसी की दोस्ती काम आएगी और ना कोई शिफात नफा देगी। और हकीकत यह है कि उस दिन के मुनकर ही अपनी जान पर जुल्म ढाने वाले हैं। ये देखें अल्फाज में, एक्सप्लिसिट अल्फाज में कह दिया, कोई शफात नहीं। देखें दूसरी जगह के ऊपर अल्लाह ताला ये भी कहते हैं, वो यानी इसकी वजह भी बयान करते हैं कि जो आमतौर पे इस दुनिया में क्या होता है, जो सिफारिश करने वाला होता है जो जाके क्या कहता है, यानी जो जो यानी लेट से कि किसी जज के पास चले जाए या किसी यानी ऐसा फेवर जिसके करें। हाथ, तो वो कहता है ना कि आपको नहीं पता, मुझे ज्यादा पता है इस आदमी के बारे में। बिल्कुल तो अल्लाह ताला ने इस चीज की नफी की है कि तुम्हें नहीं पता, मुझे बिल्कुल मुझे ज्यादा पता है, मेरे सामने कैसे इस बात। बिल्कुल सही। हत्ता कि इस जहाँ पे सिफारिश होने का जिस भी मरले पे वो कहा गया उसमें भी ये कहा गया कि होगी उसी की जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद निशानदेही करेंगे। वो यस आगे आएगा, वो आगे आएगा। यस। जी ये तो सिर्फ उसकी अदालत के मरहले की बात हो रही है, वो तो आगे की बात नहीं, वो आगे आएगा। जी नाजरीन, अब हम आते हैं कुरान मजीद की उन आयात की तरफ जिनमें शिफात के लफ्ज का जिक्र तो है मगर अदालत के मरहले का कोई तासुर नहीं। सूरह मरियम आयत 87 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और गुनाहगारों को जहन्नुम की तरफ प्यासे हाँक ले जाएंगे उस दिन। कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब कहाँ किसकी तरफ ले जा रहे हैं, प्यासे हाँक के? जहन्नम की तरफ। जहन्नुम। जहन्नम की तरफ प्यासे हाँक के ले जाएंगे। अब आगे जी करें। उस दिन यानी किसी को पनिशमेंट की सेंटेंसिंग हो हो गई चुकी है है। जी और वो अब भी बस तभी तो उनको ले जा रहे हैं। और जकड़। गुनाहगारों को जहन्नम की तरफ प्यासे हाँक ले जाएंगे। हम्म। उस उस दिन दिन किसी को किसी को शफात का शिफात इख्तियार का नहीं होगा, इख्तियार नहीं मगर होगा। उनको जिन्होंने जिन्होंने जिसने अल्लाह के पास कोई अहद हासिल कर लिया। हाँ जी। जी उस दिन किसी को शिफात का इख्तियार नहीं होगा मगर उसको जिसने अल्लाह के पास कोई अहद हासिल कर लिया। ये जहन्नम की तरफ तो ले जा रहे हैं। जी जी अदालत का मरहला खत्म हो चुका अब। बिल्कुल। हम्म दूसरी आयत जो है वो सूरह ताहा ये डॉक्टर आयत। साहब, ये जो चूंकि आप कह रहे थे ना कि जिक्र है, तो कुरान मजीद में 4 जगह के ऊपर जिक्र है, मैंने चारों कोट कर दिया। जी नहीं ये तो अभी
यकीन माने कि अभी जो अभी तर्जुमा पढ़ा है ना, तो अभी 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 ये स्ट्राइक हुआ है मुझे कि तो लिखा हुआ है साहब कि वो जन्नत की तरफ लेके जा रहे हैं, तो तो सजा कोई हो मुझसे चुकी है। पूछेगा तो मैं कहूंगा ये देखें लफ्ज में लिखा हुआ है, ये देखें अल्फाज लिखे हुए हैं, हम्म। मेरी हाँ, इंटरप्रिटेशन ही काम आएगी इसमें। और जुमला क्या है, हाँक कर ले जाएंगे, यानी बिल्कुल हर चीज वो हो चुकी है, जाना नहीं चाह रहे होंगे लोग, पकड़ के लेके जा रहे होंगे और हाँक के फरिश्ते होंगे। जी, सूरह ताहा आयत 109 में फरमाया है, उस दिन शिफात नफा ना देगी इल्ला आंखें खुदाए रहमान जिसको इजाजत दे और जिसके लिए कोई बात कहने को पसंद करे। देखें इसमें भी आपको कोई तासुर नहीं मिलेगा कि ये अदालत का मरहला है। जी शिफात का जिक्र तो है, हम्म। शिफात का लफ्ज है, और लेकिन हमने ये दिन नहीं का भी बोला कि लफ्ज है। उसकी नफी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लफ्ज है। मगर आपको अदालत, एहतसाब, जवाबदेही के मरहले का किसी जगह के ऊपर कतन कोई असर नहीं मिलेगा। हम्म। चलें आगे जी। जी, अगली आयत है सूरह अंबिया आयत 28 में फरमाया है, वो इनके आगे और पीछे जो कुछ कर रहे हैं सबसे बाखबर है और वो शिफात नहीं करेंगे मगर सिर्फ उसके लिए जिसके लिए अल्लाह पसंद फरमाए और वो उसकी खशियत से लर्जा रहते हैं। जी जी ये फरिश्तों के हवाले से खास तौर पर। जी, ऐसे ही है। आगे भी फरिश्तों के हवाले से एक और भी। सूरह सबा आयत 23 में फरमाया है, और उसके यहाँ कोई शिफात कारगर नहीं होगी मगर उसके लिए जिसके लिए वो इजाजत दे, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब उनके दिलों से घबराहट दूर होगी तो तुम्हारे यही माबूद एक दूसरे से पूछेंगे कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या हुक्म फरमाया। वो जवाब देंगे कि हक इरशाद हुआ और वो आली मकाम है, बड़ी अजमत वाला है। अब इसके मतलब जो है ना ये, यानी इसकी एक्सप्लेनेशन जो लास्ट वाली है, चौथी जो आयत थी सूरह जी सबा वाली, इसकी नोट लिखा हुआ है, इसमें पढ़े जरा। जी, सूरा के मुखातिब चूंकि कुरैश हैं और वो फरिश्तों को खुदा की चहेती बेटियां समझकर उनकी परस्तिश करते थे, इसलिए ये उन्हीं फरिश्तों का माजरा है कि आगे बढ़कर नाजो तजल्लुल के साथ किसी की सिफारिश करना तो अलग रहा, दूसरे सब लोगों की तरह उनमें से बहुतों पर भी ऐसा हौल तारी होगा कि उन्हें कुछ खबर ना होगी कि क्या हुआ और उनके परवरदिगार ने इसके दौरान में क्या फरमाया है। यानी उनका, जिनको वो माबूद समझते हैं, वो कहते हैं इनमें से बेशतर का तो हाल यही होगा। बिल्कुल। ये चार जगह के ऊपर है। आगे जरा ये देखें, फिर हमने कुछ लिखा भी हुआ मेरा ख्याल है। जी, पहली दो हाँ, आयत यानी सूरह मरियम की आयत 87 और सूरह ताहा की आयत 109 में इंसानों की शिफात का जिक्र है। मैं सामने ले यानी आता हूँ। पहले दो जगह के ऊपर इंसानों की शफाअत का जिक्र। जी, सूरह मरियम और सूरह ताहा, जबकि जी जी। सूरह अंबिया आयत 28 और सूरह सबा आयत 23 में फरिश्तों की शिफात का जिक्र है। और ये जो दो आयत है इसमें फरिश्तों की शफाअत का, क्यों? इसलिए कि वो फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार देते थे, चहेती बेटियां। जी और वो कहते थे कि भी वो हमारी सिफारिश कर देंगे, यहाँ भी वो, हम उनकी नजर नियाज करते हैं तो हमें वो देती हैं। माबूद थे ना उनके। हम्म, और अगर आखिरत हुई अव्वल तो वो उसके बारे में तजब्जब में मुब्तला थे। और अगर हुई भी तो वहां भी हमारी सिफारिश कर देंगे, हम्म। शफात कर देंगे। अहले अरब का इंसानों में से मुकद्दस हस्तियों के बारे में अकीदा था कि वो उनकी शिफात करेंगे, और इसी तरह फरिश्तों के बारे में भी अकीदा था कि वो भी उनकी शिफात करेंगे, क्योंकि वो अल्लाह की लाडली बेटियां हैं जिनकी बात अल्लाह टाल नहीं सकता। अल्लाह के बारे में वो ये समझते थे कि वो बहुत बड़ा बादशाह है, मगर जैसे दुनिया में बादशाह के मनसबदार होते हैं जिन्हें बादशाह कुछ न कुछ इख्तियार सौंपता है, इसी तरह अल्लाह के भी मनसबदार मुकर्रब हस्तियां हैं। ये हमारे भी देख लेंगे, अगर आप गौर करेंगे ना, तो हमारी जो नेट से इर्द गिर्द है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि जी अल्लाह ताला ने ही ये मुनासिब दे रखे हो। हम्म, आप देख लें कि भी वो बहुत अल्लाह ताला की उन्होंने बड़ी इबादत की, वो अल्लाह ताला के बड़े नजदीक थे, बड़े पहुंचे हुए थे, तो अल्लाह ताला ने खुद उनको ये मनसब दे रखा। हम्म, वो ये कहते हैं। और बिल्कुल। कुरान मजीद का एक ही आर्गुमेंट है इस सब चीजों के अगेंस्ट, कि मनसब मैं दे सकता था, अल्लाह कहता है, मगर फिर अनाउंस भी मुझे करना चाहिए था। हम्म, तो मैं तो ये अनाउंस किए जा रहा हूँ अपने पैगंबरों के थ्रू कि किसी को ये मनसब हासिल नहीं है। तो बिल्कुल आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल रहे हैं।
डॉक्टर तो साहब, यहाँ जी भी अगर हम बिल्कुल। समझें, यहाँ इस दुनिया में भी तो ज्यादातर लोगों के तस्वुरात यही हैं, खाली अहले अरब के नहीं हम्म थे। फरिश्तों के बारे में हम्म तो हमारे शायद नहीं है, मगर वो जो पहले दो हैं अल्लाह के नेक बंदों के बारे में, इंसानों में से जो थे, उनके बारे में हमारे तस्वुरात एग्जैक्टली यही है। बिल्कुल, आप हम्म सुनेंगे भी, मतलब कि बुजुर्गों ने ये किया है, वो अल्लाह के बड़े चहीते थे, वो उनके पास, ये मैंने भी बहुत सुना। इवन हमारे जुमे के जो वाज होते हैं उनमें ये सब बातें कर रहे होते हैं हमारे जो जितने ये खतीब होते हैं। हम्म जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें बाज़ औक़ात अगर उनको कोई कोट करना पड़ जाए तो वो ये जो है ना, आयत ये दो पहली दो वो कोट भी कर देंगे। बिल्कुल हम्म वो कभी आप ये नहीं देखेंगे कि वो जो पहली हमने तीन की हैं एक्सप्लिसिट आयत, इनमें से कभी कोट नहीं करेंगे। हम्म, हाँ, जी कभी कोट नहीं करेंगे, कोई कोट करता नजर नहीं आएगा आपको। जो भी इस नजरिए के हामी है वो ज्यादातर यही वाली, और वो कोई भी नहीं कोट करता उन कोई आयतों को। वो कतन कोट नहीं करेंगे। कोट क्यों नहीं करेंगे कि उसके अंदर तो लिखा हुआ है सामने। हम्म अच्छा, अगर कोई बंदे कहे जी अच्छा जी ये जो पहली दो आयत है, कहते हैं, ये तो बनी इसराइल के बारे में। हम्म तो बनी अच्छा इसराइल के लिए कोई और असूल है, तो मुसलमानों के लिए कोई और असूल है। हम्म, तो अच्छा, हम ये भी उनको कहते हैं। तीसरी आयत दिखाते हैं कि ये तीसरी देख लो, ये तो अहले ईमान लिखा हुआ है भाई। हम्म हालांकि अल्लाह ताला क्या कहता है, उसकी सुन्नत कभी चेंज नहीं होती। सो सही है जी। जी आगे बढ़े जी। जी डॉक्टर साहब, ये चार की चार जो आप कई दफा आपने जिक्र किया कि कुरान मजीद में ऐसे है, ये चार जगह के ऊपर जिक्र। बिल्कुल। और जी दो पहली जो है ये इंसानों के हवाले से है। वही तस्वर जो हमारी उम्मत में भी है कि जी बहुत ज्यादा उन्होंने इबादत की, वो अल्लाह के बहुत करीब थे, तो अल्लाह ताला ने उनको मनसब दे दिए, वो भी ये कहते हम्म थे। और दूसरी जो नेक्स्ट दो है वो है फरिश्तों के बारे में, खसूसन उनके लिए, क्योंकि उनका एक तसव्वुर था फरिश्तों के बारे हम्म, में, हमारा नहीं है ये। जी सही। अल्लाह आगे। के बारे अल्लाह के बारे में वो ये समझते थे कि वो बहुत बड़ा बादशाह है, मगर जैसे दुनिया में बादशाह के मनसबदार होते हैं जिन्हें बादशाह कुछ न कुछ इख्तियार सौंपता है, इसी तरह अल्लाह के भी मनसबदार मुकर्रब हस्तियां हैं जिन्हें उसने अपनी इस अजीम कायनात में कुछ इख्तियारात दे रखे हैं। अगर हम उनकी नज़र न्याज करेंगे तो वो खुश होकर हमें यहाँ दुनिया में भी देंगे, और आखिरत हुई तो वहाँ भी हमारी शिफात यानी सिफारिश करके अल्लाह से हमें बचा लेंगे। उनके इन अकायद का कुरान मजीद में जा बजा जिक्र हुआ है। नाज़रीन, इन चारों आयात पर गौर कर लें कि यहाँ अदालत, एहतिसाब, जवाबदही के मरहले का जिक्र नहीं है, बल्कि महज शिफात का जिक्र है जो लफ्ज इंसानों के। शफात है। जी शफात लफ्ज बिल्कुल। शफा तो है, जी मगर हम्म किसी जगह के ऊपर डॉक्टर साहब बताएं आपको ये आ रहा है इंप्रेशन कि भी ये अदालत का मरहला है? नहीं सर। आप शफात का लफ्ज जो देख रहे हैं सामने, इसका इनकार तो नहीं कर सकते ना, शफात तो लिखी हुई है, जी हम्म मगर वो मरहला नहीं है। वेर एज वो एक्सप्लिसिट में वो मरहला नजर आ रहा था आपको। तो बिल्कुल। आप आगे देखें अपना इसहाक साहब क्या फरमाते हैं। जी, बल्कि महज शिफात का जिक्र है जो इंसानों के हवाले से भी है और फरिश्तों के हवाले से भी। अपने डॉक्टर साहब आप बताएं कि जो हमने अब तक ये सारी आयत पेश की हैं, इसमें आपके सामने क्या चीज आई? वो भी चीज आ गई कि चार जी जगह के ऊपर जिक्र है शफात का, और वो एक्सप्लिसिट आयत भी आपके सामने आ गई जिसमें तीन जगह के ऊपर जिक्र है कि कोई शफात नहीं हो सकती, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, कोई शफात नहीं हो सकती, कोई ले दे के छुटकारा नहीं हो सकता, और हम्म बाहर से भी मदद नहीं किसी की जा सकती। क्लियर है ना ये ऐसे? बिल्कुल, बात सही है। अच्छा, बिल्कुल अब ठीक है, सही। ये चीज क्या रह गई? अब यहां तक तो ये नतीजा निकालने में हक जानब है ना हम, कि भाई जी एक्सप्लिसिटली तो उस जवाबदेही एहतसाब के मरहले में, अदालत के मरहले में किसी किस्म की ये चारों में से कोई चीज नहीं है। मुझे अपना इसहाक साहब जी ऐसे ही ऐसा है। ही, ऐसा ही है। आप खुरम खान साहब आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, और क्या कहते हैं, ये भी एक आयत में वो बता दिया जो कि वो मुजरिमीन को हाँकते हुए ले जा रहे होंगे और उस मौके पे कोई शिफा, तो ये तो बिल्कुल वाजे कर दिया। और इससे ज्यादा एक्सप्लिसिट क्या हो सकता है कि भाई उस मौके पे होना ही नहीं है, सेंटेंसिंग के मौके पे। तो ये तो बिल्कुल जी क्लियर है।
यानी इसका मतलब ये हुआ, देखें, वो पहली जो एक्सप्लिसिट आयात है अपनी जगह के ऊपर, उससे नतीजा ये निकल गया, अगर शफात ही को फोकस कर लें कि किसी किस्म की शफात उस मरहले में, जवाबदेही एहतसाब के मरहले में, अदालत के मरहले में नहीं होगी, ये नतीजा निकल गया। ठीक है। बिल्कुल। मगर ये जो चार आयात है सामने आ रही है, इससे ये भी चीज सामने आ गई कि शफात होगी। जी। इससे अब अल्लाह यही ताला ने जिस, डिस्कशन करना है कि शिफात होनी कब है, जो कुरान बता रहा है। जी, अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें वो एहतसाब के, जवाबदेही के, अदालत के मरहले का किसी किस्म का तासुर नहीं है, मगर शफात का जिक्र है। हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मरहला कोई दूसरा है। बिल्कुल। वो दूसरा जो मरहला है, अब मैं आपको आगे हम प्रोग्राम पर करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी चीज आ जाएगी। मगर ये चीज के शफात, जो शफात ये लफ्ज लिखा हुआ है, इसका ताल्लुक जहन्नम से निकाले जाने के साथ है। बिल्कुल ठीक। एक दफा आइंदा जहन्नम की बात प्रोग्राम किया में, करो। आइंदा प्रोग्राम में हम जो हमारे कुछ माजी के स्कॉलर्स हैं उनका भी रेफरेंसेस हम देंगे कि वो भी इससे यही अंडरस्टैंड करते थे, और आपको हदीस के हवाले से भी चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि शफात का जिक्र जहन्नम से निकाले जाने के साथ है। जहन्नम से निकाले जाने के अमल को क्या कहते हैं जनाब? शफात। डॉक्टर साहब, बिल्कुल जहन्नम से निकाले जाने के अमल को क्या कहते हैं? शफात। आइंदा प्रोग्राम में आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, ठीक होगा सर। और यानी वो भी किस अमल सारे को कि अल्लाह कहते हैं। ताला की अपनी मर्जी के तहत होगा। वो आएगा, हर चीज आ जाएगी। जी जी, यानी वो वो हम जो करेंगे। खास तौर के ऊपर जो अहादीस के हवाले से लोग आमतौर के ऊपर कंफ्यूजन फैलाते हैं, वो भी हम सारा का सारा वाज़ेह करेंगे कि शफात का ताल्लुक जहन्नम से निकाले जाने के साथ है। वो अमल है शफात, जहन्नम से निकाले जाने के अमल को क्या कहते हैं? शफात। हम्म, शफात कुरान मजीद में उसका मतलब यही है। हम्म, ठीक। क्यों? कि इसलिए कि एक्सप्लिसिटली डॉक्टर साहब क्या सामने आया आपके, कि अदालत के मरहले में तो नहीं आएंगे, हम्म। और मगर दूसरी बात शफात। यह कि ये हम क्यों इस पे इतना स्ट्रेस अपॉन कर रहे हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस ना होने की वजह से फिर बहुत सारे माशरती खराबियां पैदा जो होती है ना जी, वो जी बहुत सारी। लोग फिर ये हम्म, कहेंगे, अब आपको नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें पार्ट में बताएंगे भी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अपने अजीजों के बारे में क्या है, अपनी हम्म, पुत्री के बारे में, अपनी बेटी के बारे में, अपने चचा के बारे में हजूर क्या कह रहे हैं, हम्म, वो हदीस सामने आ जाएगी आपको। बिल्कुल और ठीक। स्ट्रेस नहीं, आपने और ठीक अगर कहा मैं कि इस हम पे क्यों एक एम्फोसिस क्लैरिटी। डाल रहे हैं, इसलिए कि भाई इससे बड़ी खराबियां पैदा होती हैं। और फिर हम्म, आदमी अगर इसके ऊपर यानी इन्हिसार करके बैठ जाएगा, तो क्यों कहेगा जी कोशिश हम तो उम्मत में से हैं, हमारी शफात हो जानी है। भी वो हजूर ने, मैं इसमें एक छोटा सा ऐड भी कर दूं कि वो हम एक दफा, एक साहब जिसके साथ वो मेजर साहब थे, हमारी कोई डीलिंग थी, वो तीन आदमियों को साथ लेकर आए। तो जहां भी मैं होता हूँ ना, मेरे पास ये कुरान मजीद भी पढ़ा होता है, बाइबल भी पढ़ी होती है, और मैं वो तीन मिशकात शरीफ भी अपने साथ ना, मिशकात जो हदीस की है ना कलेक्शन, वो तीन उसकी जिल्दें वो भी मैं रखता हूँ। तो वो कोई बात करते करते, अब जाहिर बात तो होती है, मैं चूंकि मजहबी बातें करता भी रहता हूँ, तो मेजर साहब ने कहा कि जी देखें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमा दिया था कि या रब उम्मती उम्मती, कि या रब मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे। तो हजूर ने तो हमारे लिए माफी मांग ली हुई है, सिफारिश कर दी हुई है। वो ये बात कर रहे थे, मैंने कहा उनको, मेजर साहब को, कि मेजर साहब ये जो आप चीज कोट कर रहे हैं ना, उम्मती उम्मती, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ लिखा हुआ है। मैंने हम्म, जनाब उसकी मिशकात की जिल्द नंबर 3 खोल ली, उधर वो जो है बाब है, बाबुल हौज व शफा, वो मैंने खोल ली। हदीस जो है वो दो हैं जो मुत्तफिक अलैह हदीस, इसमें एक हदीस में ये 3 दफा है उम्मती उम्मती। तो मैंने सामने कर दी, मैंने कहा जरा गौर पर बात है, ये किस मौके पे कह रहे हैं? ये उस मौके पे कह रहे हैं जो कि जहन्नम में पड़े हुए लोग हैं उनके लिए कह रहे हैं। मैंने कहा देख हम्म, लें, पहला भी देख लें, दूसरा भी देख लें, तीसरा भी देख लें। फिर जब उन्होंने देखा तो कुछ हैरान हुए। तो मैंने फिर उनको ये बताया, मैंने कहा देखें मेजर साहब, दूसरों की मुखातिब किया
کہ آپ نے پہلے ضرور جہنم میں جانا کہ حضور آپ کی شفاعت کریں. اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے جو آپ کوٹ کر رہے ہیں امتی امتی, اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے, سامنے لکھا ہوا. جب لوگ یہ بات کرتے ہیں تو خود بھی یہ نہیں سوچتے کہ اس سے اللہ کی جو انصاف ہے, عدل, اس پہ کتنی بڑی چوٹ آتی ہے, اور پھر اس کے بعد جو اس کی ساری اسکیم ہے وہی خراب ہو جاتی ہے. مطلب جو جس اسکیم کے تحت دیکھیں, بنایا جس کو بیٹھے بٹھائے ایسی چیز مل جائے, جہنم سے چھٹکارا مل جائے, اس کی سفارش ہو جائے, شفاعت ہو جائے, تو اس کو کیا مصیبت ہے انکار کرنے کی. اللہ نے پیدا کیا ہے کہ آدمی کو مسلمان کے گھر میں اس کی اپنی کوئی کنٹریبیوشن نہیں, تو پیدائش کی بنیاد کے اوپر اس کی چھٹکارا ہو گیا اس کا, تو کیوں کرے وہ انکار. جی بہت شکریہ ہاشمی صاحب, آپ نے اس کی وضاحت کر دی. معزز ناظرین, یہ ہمارا TGSG یعنی دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ کے پلیٹ فارم سے ایپیسوڈ نمبر 29 کا پارٹ 1 تھا, جس میں ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے تصور شفاعت پر گفتگو کی. پارٹ 2 میں ہم انشاءاللہ تصور شفاعت پر احادیث کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے اور ماضی کے کچھ اسکالرز کے ریفرنسز بھی پیش کریں گے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیے گا تاکہ ہم آئندہ پروگرامز کو بہتر کر سکیں. بہت شکریہ.